सॉरी, ठीक है। सो एक बार फिर से, द की थिंग्स अबाउट दिस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, देयर आर थ्री कैटलिस्ट ओवर हियर: metal catalyst, D block catalyst, nickel, platinum, and palladium. Platinum and palladium, they do the hydrogenation or reduction of alkene or alkyne at STP. ठीक है. However, when we are treating it with nickel, nickel as a catalyst or rainy nickel as a catalyst, then we have to elevate our pressure by some amount and also elevate our temperature. Then only the hydrogenation will take place. There is another this thing catalyst, a complex catalyst, tris triphenyl phosphane rhodium chloride. That is also known as Wilkinson catalyst. And whether it is Wilkinson catalyst or those D block metal catalyst, the primary mechanism of hydrogenation happens to be exactly the same. ठीक है. uh, the hydrogenation takes place through adsorption of hydrogen on the surface of catalyst material. ठीक है. uh, the key and another key aspect of this is uh, the less stable alkenes react, or less stable unsaturated hydrocarbon reacts at a faster pace compared to more stable alkenes towards hydrogenation via these catalysts. ठीक है. Apart from these catalysts, there are other reactions also in which the reduction takes place. ठीक है. One such reduction is Brown's hydroboration reaction. Brown's hydroboration reaction. ठीक है. Brown's hydroboration में you have B2H6 in THF. In THF means tetrahydrofuran, and B2H6 in tetrahydrofuran actually gets dissociated into B2H6, gets transformed into BH3. ठीक है. And it starts behaving as a Lewis acid. इस फॉर्म में ये Lewis acid नहीं है, right? Diborane is not a Lewis acid, but borane, that is BH3, is a Lewis acid. ठीक है. तो B2H6 in tetrahydrofuran gets dissociated into borane, that is BH3, which acts as a Lewis acid, and in turn it works as an electrophile and gets attached to the C double bond C. ठीक है. And then there is a simultaneous hydride transfer in a cyclic transition state which takes place. In a cyclic transition state, a hydride transfer takes place. ठीक है. And it forms this kind of species. Either of them. अगर B2H6 है तो it will form this thing. B2D6 है, it is going to form this thing. ठीक है. दो possibilities, B2H6 and B2D6. B2H6 से ये फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन आके अटैच हुआ ये सेंट्रल वाले पे, और यहाँ पर ड्यूट्रियम आकर अटैच हुआ. अगर मान लो B2D5H है, उस केस में क्या आकर के अटैच होगा? इट विल बी हाइड्रोजन विच विल गेट अटैच्ड. ठीक है. नॉट ड्यूट्रियम. ड्यूट्रियम का बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, हाइड्रोजन का वीकर होता है. सो प्रेफरेंशियली हाइड्रोजन जो है वो आकर के यहाँ पर अटैच होएगा. यहाँ पर बात समझ में आ रही है हम लोगों के? अब एक बार ये हो जाता है, उसके बाद हम किसी भी माइल्ड एसिड से एक्चुअली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और किसी भी माइल्ड एसिड से ट्रीट करने पर इट इज गोइंग टू जनरेट अ हाइड्रोकार्बन और अल्केन. ठीक है.
H2SO4 से किया हमने, तो ये BH2 को रिप्लेस कर देता है और खुद आकर के H यहाँ पर ये कर देता है, ऐड कर देता है। BH2 गेट्स रिप्लेस्ड बाई H+। ठीक है, अगर H+ के बदले D+ है, D+ की अवेबिलिटी है, तो इट इज गोइंग टू रिप्लेस द D+ इज गोइंग टू रिप्लेस दिस BH2। पहले से ड्यूट्रियम अटैच्ड है, D2SO4 या CH3COOD से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो एट बोथ प्लेसेस वी आर गोइंग टू हैव ड्यूट्रियम। अगर यहाँ पर H2SO4 या फिर CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो वी आर गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विथ D at second carbon and H at the first carbon. Making sense? Is it aligned with the mechanism which we have studied? Not this one, the first part. हेलो, हाँ सर। बात समझ में आ रही है हम लोगों के, या कोई प्रॉब्लम किसी को? Anyone having any problem of any type? ठीक है, नहीं है तो अगला। अच्छा, ये रिएक्शन एक बार और अल्कीन के टाइम पर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर लॉजिक यही होता है, B2H6 अगर हम डालते हैं तो बोरॉन आके लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होता है एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे कार्बोकैटायन बनता है, which is stabilized, thermodynamically more stabilized, and फिर हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, that creates हाइड्रोबोरेन, और हाइड्रोबोरेन का फिर रिएक्शन होता है किसी भी एसिड से, हम अगर रिएक्शन उसका कराते हैं माइल्ड एसिड से, तो इट इज गोइंग टू जनरेट अल्केन। ठीक है, ओके। और यहाँ पर दो और छोटे छोटे रिएक्शन है, जैसे साइक्लो अल्केन्स जो है ना, साइक्लो अल्केन्स में भी 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है, और स्ट्रेन्ड रिंग्स जो होते हैं हमारे, स्ट्रेन्ड रिंग्स स्पेशली साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों क्या है, हाई टेम्परेचर पर निकल या प्लेटिनम वगैरह के साथ अगर हाइड्रोजिनेशन हम करा रहे हैं, तो दे कैन ब्रेक द रिंग एंड फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से अगर हम हीट और हाइड्रोजन दोनों इनको दे रहे हैं, तो दे मे गेट हाइड्रोजनेटेड एंड फॉर्म अल्केन। इज इट ओके? नॉट ओनली दिस, साइक्लोप्रोपेन जो होता है, ब्यूटेन तो नहीं बट साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो उसके अंदर स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मेनी अ टाइम्स अल्कीन्स के काफी सारे रिएक्शंस देने लगता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन मतलब हाइलोजेंस का एडिशन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी वो देने लगता है, एडिशन रिएक्शन देता है, यानी अलाइलिक रिएक्शंस बेसिकली जो होते हैं वो देने लगता है, प्लस एडिशन रिएक्शन देने लगता है। इट कैन क्लोरीन वगैरह के साथ रिएक्शन पे भी इट कैन ब्रेक द चेन एंड गेट एडेड टू द चेन। ठीक है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है एंड इट विल फॉर्म 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। this can react with Cl2, ठीक है ना, and electrophilic addition basically Cl2 in some good medium, maybe H2O ले लो या फिर कोई और इलेक्ट्रोफाइल, CCl4 वगैरह में भी this can break this and form this thing, Cl और इधर भी Cl। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? This all happens because of great strain over this. So यहाँ पर ये strain की वजह से hydrogenation reaction दे रहा है और it is forming saturated compound. यहाँ पर एक रिएक्शन ये बेंजीन का बेसिकली हाइड्रोजनेशन के लिए डिस्कस किया है. नाउ इनिशियली इसका फर्स्ट वाला जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का, दैट इज क्वाइट स्लो एंड इट हैपेंस इन वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस. ठीक है. सेकेंड वाला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर reduced benzene is relatively faster and it happens and it takes place under less severe condition. The third addition यहाँ से cyclohexane बनने वाला, that is much faster compared to the previous two and that is quite expected. ठीक है. Why is it happening so? The extra stability of benzene due to aromaticity and extra stability of this conjugated diene जो इन दोनों को relatively less reactive बना रहा है. Am I making sense towards hydrogenation? हेलो. हाँ सर समझा. लास्ट वाला जो रिएक्शन है वो थोड़ा स्पेसिफिक रिएक्शन है मीथेन प्रोडक्शन के लिए. इन दोनों में मीथेन फॉर्म होता है. एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड reacting with H2O, they produce their, aluminium produce its hydroxide and beryllium produce its oxide, and along with it, both of them provide methane. So carbide of aluminium and carbide of beryllium reacts with water to form methane. Is it okay? Carbide of aluminium and carbide of beryllium reacts with water to form methane. कार्बाइड ऑफ कैल्शियम क्या फॉर्म करता है when treated with water? इथाइन. Ethyne. And carbide of magnesium? Any guesses? C2H4. कार्बाइड ऑफ मैग्नीशियम C2H4 नहीं फॉर्म करता है. Think it forms something else. Probably it forms propine. Yes, it forms propine. Carbide of magnesium forms propine. Is it okay to all? हेलो. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. Fine. Let us move to the next page. Okay. हाइड्रोजनेशन के बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स अल्काइंस के बाद द नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस व्हिच कैन जनरेट. अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा ये एक दो क्वेश्चन डाल रखा है मैंने. फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्या? कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ए वाले में ये हाइड्रोजनेशन का रेट 1 2 3 में क्या ऑर्डर में रहेगा? कैन वी गेस? आई बिलीव वी कैन. ए वाले में व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 3 is
स्लोएस्ट, देन 2, देन हाँ 1। स्लोएस्ट होगा। ठीक है, बी वाले में क्या होगा? सारे लोग अग्री कर रहे हैं इस फैक्ट को। इट विल बी 3, 2, 1। 3 विल बी द लोएस्ट एंड 1 सर विल मेरा बी द... कॉलेज का क्लास है, मुझे ठीक करना होगा। अच्छा, कॉलेज का क्लास चालू है अभी? हाँ सर सर, मतलब 2 मिनट में स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? इंग्लिश। ठीक है, अटेंड कर लो। सर आप कब तक लेक्चर लोगे? मेरा 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं वापस ज्वाइन करूँ या नहीं? और देख लेना एक बार, अगर रहेगा तो चलता रहेगा तो फिर कर लेना। ठीक है, मुझे ठीक। भी नहीं पता है चैप्टर जितनी देर तक चलेगा, मुझे मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म कर लूँ इसको आज, बट आई एम नॉट श्योर पूरा हो पाएगा कि नहीं। बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो वैसा ही बन जाए। हेलो, हाँ, द नेक्स्ट, ओके, बी वाले में क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द सेकंड केस? फर्स्ट वाला फास्ट होगा। क्या क्या? फर्स्ट वाला फास्ट होगा, सेकंड वाला कम फास्ट होगा। ठीक है, सारे लोग अग्री करते हैं? व्हाट अबाउट सी? फर्स्ट वाला फास्ट होगा। फर्स्ट वाला फास्ट होगा। बी वाले में फर्स्ट वाला फास्ट नहीं होगा, बी वाले में सेकंड वाला फास्ट होगा। दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकंड वन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, दिस विल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन दिस वन। सो बी वाले में द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 2 will be reacting faster compared to 1. और हाँ, सी वाले में द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 1 and 2। ठीक है, सी में द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 1 is going to be more reactive than 2. What about D? 1 and 2, 1 ज्यादा होगा। 1 ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, चलेगा। ये बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? छोटे क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं, और किसी के लिए भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो तीनों शुरू के तीनों रिएक्शंस जो है ना, शुरू के तीनों मतलब निकल, पैलिडियम एंड प्लेटिनम, एंड साथ में विल्किंसन कैटलिस्ट, ये दोनों का ही, दोनों के थ्रू जो रिडक्शन है दैट इज गोइंग टू फॉलो दिस थिंग ओनली। ठीक है, जो लेस स्टेबल होगा वो ज्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा, ज्यादा फास्टर रिड्यूस होएगा। मेकिंग सेंस? The next reaction or the next method of formation of hydrocarbon or alkene is from alkyl halide। ठीक है, कैसे बनाते हैं? तो पहला मेथड जो है दैट इज कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं? वी ट्रीट पैलिडियम विद कार्बन, वी यूज पैलिडियम विद कार्बन और पैलिडियम कोटेड विद कार्बन, एंड देन यू हैव H2। ठीक है, that reduces RX into RH, या फिर H2 रेनी निकल एंड डेल्टा, दिस reduces RX into RH और अल्कीन। ठीक है, सो रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट पॉइजन्ड पैलिडियम with H2 और रेनी निकल with H2 at slightly elevated temperature। Palladium poisoned with carbon with hydrogen or H2 with Renni nickel and some higher temperature।
Is it okay? The next reaction is reduction by hydride. रिडक्शन बाय हाइड्राइड में होता ये है, करते ये हैं कि देखो यहाँ पर RX जो होता है, RX has a tendency to break down as R plus and X minus, right? कार्बोकैटायन एंड X माइनस as अनायन। अब ऐसे में अगर हमारे पास H माइनस कहीं से भी जनरेट होकर के आ जाता है तो दिस H माइनस कैन वेरी इजीली रिएक्ट विद R, ठीक है, एंड इट विल आल्सो हेल्प इन or may help in release of X minus from RX, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल, ये बाइसल्फाइड, ट्राइफिनाइल बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड, ये सारे लोग जो हैं दे आर गुड हाइड्राइड जनरेटर्स, ठीक है। ऑल ऑफ देम और ईच ऑफ देम आर गुड हाइड्राइड जनरेटर। इज इट ओके? और हाइड्राइड आयन जो होता है, कहीं पर भी वो जनरेट हो रहा हो, हाइड्राइड आयन is a good nucleophile and at the same time it is a very good base. It is one of the strongest base known in chemistry. Are we getting this point? एक strongest nucleophile at the same time एक strongest base भी है, इसीलिए यहाँ पर कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं। If we have, अब ये H माइनस कहाँ से जनरेट हो रहा है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग होगा। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो H माइनस जनरेट होता है दैट इज मोर एक्टिव कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड से जनरेटेड H माइनस, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड से जनरेटेड या लिथियम हाइड्राइड से जनरेटेड H माइनस जो होता है दैट इज गोइंग टू बी मोर एक्टिव, सोडियम हाइड्राइड हो या फिर ग्रुप 1 वाले हाइड्राइड कोई भी ले ले, पोटेशियम हाइड्राइड ले लें, सीजियम वगैरह तो हाइड्राइड बहुत वीक फॉर्म करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट पोटेशियम हाइड्राइड भी अगर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू वर्क इफिशिएंटली विथ, और दैट इज गोइंग टू वर्क इफिशिएंटली, ठीक है। मतलब इनसे निकलने वाला ये हाइड्राइड जो होते हैं ये प्राइमरली आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं और ये हाइड्राइड्स भी काफी एक्टिव होते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्राइड जो होता है दैट हैज आई मीन ionic as well as covalent character. The ionic character is predominant in lithium aluminum hydride, ठीक है। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में द I mean it's like covalent character and this ionic character both are almost in hand in this case, ठीक है। The ionic character wins by a very slight margin, जबकि सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में द हाइड्राइड इज मच मोर आयनिक कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी एज वेल, ठीक है। यहाँ पर कम एक्टिव होता है तो 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों में से कुछ भी या 1 डिग्री भी अगर हम लोग लेते हैं तो उसको वो रिड्यूस कर देगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी को भी, यहाँ पे 1 डिग्री भी लिख सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी को भी रिड्यूस कर देता है हाइड्राइड में, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है उसके साथ 1 डिग्री या 2 डिग्री को ही हम यूज कर सकते हैं। 3 डिग्री को अगर यूज करेंगे तो इट विल स्टार्ट गिविंग एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग अ अल्केन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अल्कीन, ठीक है।
ट्राइफेनाइल बाइसल्फाइड जो है, this can react with any of the halides 1 degree 2 degree 3 degree to form a alkene, whereas sodium hydride and lithium hydride they are purely ionic and most active hydride ये देते हैं, so they can react only with 1 degree alkyl halides to form a alkane. 2 डिग्री या 3 डिग्री दोनों में से कोई भी अगर हम यूज करते हैं तो दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट? अल्कीन्स. Here I have taken two examples, Me3 carbon and Cl being treated with lithium aluminum hydride and it is treated with sodium borohydride. With lithium aluminum hydride, it is being deprotonated and dehalogenated to form an alkene. ठीक है? So hydride here is working as a base in order to form an alkene. Whereas in this case, the hydride is working as a nucleophile. Hydride released from here is working as a nucleophile and it is replacing chloride ion. Hydride is working as a nucleophile and it is able to reduce okay. That's outside only. Okay. Next set of reactions of halides in order to produce alkene is reduction by zinc. ठीक है? And reduction by zinc can take place in these three forms. It can react with zinc copper couple with any of the alcohols, can reduce Rx into RH. Basic equation which takes places, हर जगह पे actually H plus रहता है. ये तीनों जगह यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो. तीनों जगह H is in plus format, and what happens is zinc loses its 2 electrons to form Zn2 plus and 2 electrons. These 2 electrons are then accepted by hydrogen to form hydride ion, and this hydride ion then replaces the X. Are we getting this point? Achha, sorry, it's other way around. The R plus which is being generated, that receives the electrons to form R minus, and R minus gets attached to H plus, which is present in the system, or it extracts H plus to form RH. ठीक है? Zinc in NaOH reacts zinc
NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है, पता है हम लोग को रिएक्शन? हाँ सर। वेरी गुड। तो वहां पर बेसिकली हाइड्रोजन जिस तरीके से बनता है, H2 जिस तरीके से बनता है, वहां पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। सेम रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, एंड H will actually replace X। ठीक है। रिडक्शन के बाद दिस इज कपलिंग रिएक्शन। देयर आर मल्टीपल कपलिंग रिएक्शंस विद डिफरेंट नेम्स। कोई भी इसमें से हम लोग ये रिएक्टिव मेटल यूज करते हैं तो दे कैन लीड टू कपलिंग प्रोसेस। कपलिंग प्रोसेस का मतलब होता है दो हलाइड मॉलिक्यूल्स का मिक्स होकर के या ऐड होकर के forming one big alkane molecule. Two alkyl halides being merged together upon extraction of their halide ions to form a bigger alkene molecule. ठीक है। When we use sodium, we call it Wurtz coupling। ठीक है। और इनमें से कोई भी कपलिंग होगी। अब ये तो इंट्रा कपलिंग है तो इसका कुछ नहीं है, बट जनरली एक्सटर्नल कपलिंग अगर हो रही है, बाहर के दो मॉलिक्यूल्स अगर मिल रहे हैं, तो वी ऑलवेज हैव बेस्ट रिजल्ट फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है। जो सिस्टम सिमेट्रिकल नहीं है उसके लिए रिजल्ट्स जो होंगे वो काफी ऑकवर्ड रहेंगे। ऑकवर्ड रहेंगे मतलब परसेंटेज फॉर्मेशन जो रहेगा हमारा मेन कंपोनेंट का, पापा मेरे साथ आपका फोन वुर्ज कपलिंग में के बाद देन वी हैव इंटरनल वुर्ज कपलिंग, and in internal Wurtz coupling we have one chlorine and one bromine being attached on a cyclo system, here cyclobutane, and then we are hitting it with sodium in presence of dry ether which is solvent. अपने पास रखेंगे और आपके साथ में रहेंगी। Where is my blue phone? Go and search it. ठीक है। इंटरनल वुर्ज कपलिंग में बेसिकली ये इंट्रा होता है इसलिए इसको इंटरनल बोलते हैं। इट्स अ इंट्रा प्रोसेस, इनसाइड मॉलिक्यूल नहीं होता है, दोनों हलाइड इनसाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, एंड द नॉर्मल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब चूंकि इंटरनल होता है तो क्रॉस कपलिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इंट्रा रहता है तो क्रॉस कपलिंग की गुंजाइश नहीं रहती है, एंड इफिशिएंसी जो रहती है वो काफी हाई रहती है। इंटरनल वुर्ज कपलिंग में क्रॉस, नो चांस ऑफ क्रॉस कपलिंग। क्रॉस कपलिंग का मतलब समझ रहे हैं हम लोग? नो क्रॉस कपलिंग एंड हाई प्रोडक्टिविटी। कपलिंग का मतलब यार होता है जैसे सपोज मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड और इसको 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ मैं हीट करता हूं इन ड्राई ईथर
ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज CH3 ठीक है। ये CH3 का दूसरे CH3 मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड कपलिंग, पेयरिंग, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर हमारा सिमेट्रिक है, तो इसका प्रोडक्शन जो होएगा दैट मींस इट इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम डुप्लीकेशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी रिएक्शन वेसल में आपको एक्चुअली एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रखना है। क्रॉस कपलिंग का मतलब होता है एक मिथाइल लिया है हमने और एक C2H5 लिया है, ठीक है। इन दोनों की कपलिंग अगर हम कराते हैं तो वी विल हैव 3 प्रोडक्ट्स, CH3CH3 plus CH3 C2H5 and plus C2H5 C2H5। बात समझ में आ रही है? नाउ ऑब्वियसली ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट होने से इसका फॉर्मेशन जो होगा, परसेंटेज जो होगा, दैट विल बी मच लेस देन 100%, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, सिर्फ यही वेराइटी थी, सिर्फ यही वेराइटी थी, तो द परसेंटेज ऑफ ethane being formed from methyl chloride is going to be too high. It will be almost close to 100%. एक ही प्रोडक्ट बनना है तो 100% ही बनेगा ना। 2 या 3 कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट हैं तो एक प्रोडक्ट जो डिजायरेबल है हमारा, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सर ठीक है। सो दिस इज क्रॉस कपलिंग। यहाँ पर इंट्रा कपलिंग होती है, इंट्रा कपलिंग की वजह से क्रॉस कपलिंग के चांसेस नहीं रहते हैं और प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल देखो, दोनों एंड पर ब्रोमीन है एंड हम कपलिंग करके साइक्लोअल्केन बना लिए, ठीक है। Okay. Once we have or once we know that there are 2 more reactions or 2-3 more reactions, one is Fittig reaction. Fittig reaction में basically it's same as Wurz reaction, nothing different. The only difference is यहाँ पर actually phenyl halide, ठीक है। फिनाइल हालाइड को हम यूज कर रहे होते हैं फिनाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम के प्रेजेंस में कपलिंग हो रहा है इसका। सोडियम डिप्ड इन ड्राई ईथर, कपलिंग हो रहा है एंड इट क्रिएट्स डाइफिनाइल। फिनाइल ब्रोमाइड reacting together to produce diphenyl. This is known as diphenyl, ठीक है। डाइफिनाइल। नेक्स्ट थिंग इज वुर्ज फिटिग और क्रॉस कपलिंग। क्रॉस कपलिंग का मतलब है अलग अलग हाइलाइट्स को यूज करके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बिगर मॉलिक्यूल। अब इस सिनारियो में हमेशा ये होता है, इस सिनारियो में हमेशा ये होता है कि यू हैव I mean you have multiple side products and due to which the effectiveness of production of the desired product decreases. हाँ महेश, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, गलती से हो जाए सर, आप लोग ध्यान मत दिया करो। वो हम लोग बोलना, हम लोग बोल देते हैं। ओके, ठीक है। Then last one is Franklin reaction.
ओके, यहाँ पर बेसिकली the zinc is being replaced by zinc has been replaced by sorry sodium has been replaced by zinc. That's the only difference, nothing else. Sodium has been replaced by zinc and rest everything is as it is. Obviously यहाँ पर भी प्रोडक्शन तभी ज्यादा रहेगा बेस्ट फॉर सिमेट्रिकल अल्केन्स. अल्केन अगर हमारा सिमेट्रिकल है तो द प्रोडक्शन विल बी इफिशिएंट. अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो the productivity will be low. Making sense? So ये जितने भी coupling reactions हैं they are going to work fine or work well for what? For symmetrical systems. Symmetrical alkane है तो they are going to be efficient method for its production. But unsymmetrical है तो they all are going to get failed. Am I making sense? Hello? Am I हाँ making सर, हाँ sense? सर, Okay. हाँ. The next method of synthesis is, again it is from halides only. It is by hydrolysis of Grignard or Gilman's reagent. Hydrolysis मतलब वाटर के साथ हम लोग या फिर माइल्ड एसिड्स के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं. अब ये दोनों बनते कैसे हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी होगी. अरे यार कोरे हाउस में बताया क्या गिलमैन को. ओके, सी देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो RX अल्काइल हलाइड को अगर हम लोग Mg के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट कराते हैं. ड्राई ईथर इज important. The system of or the reaction vessel must be very much free from any amount of water or any protic substance. ठीक है. सो ड्राई ईथर के साथ Mg और RX को जब हम रिएक्ट कराते हैं, अल्काइल हलाइड को Mg के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो Mg is able to lose its 2 electrons. ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स R प्लस एक्सेप्ट करके इट बिकम्स R माइनस. ठीक है, R प्लस से R माइनस बन जाता है. एंड R माइनस बनने के बाद R माइनस बनने के बाद 5 बज गया क्या? ये सर 4:30 हो रहा है. 4:30 हो रहा है ना. सॉरी, RMgx के बारे में बता रहा था. सो Mg loses its 2 electrons to form Mg2 plus and 2 electrons. These 2 electrons are gained by R plus to form R minus. This R minus then reacts with Mg2 plus to form a complex. ठीक है, and this then combines with Cl minus to finally form RMg. Cl minus है तो Cl minus, Br minus है Br minus, so we call it RMgX. यहाँ पर R जो होता है instead of positive it is actually in negative form, anionic form, कार्बन आयन के फॉर्मेट में रहता है. And this R minus of RMgX is a very very good and efficient base. ठीक है, very good and very efficient base. Making sense? It can react with any of the mildest acids, any of the mildest acids to form alkyl halide. Similarly, you have Gilman's reagent. Gilman's reagent. This R2Cu is known as R2Cu-Li-X is known as Gilman's reagent. इसका फॉर्मेशन नीचे में मैंने बताया है कोरे हाउस सिंथेसिस में. कपलिंग ऑफ अल्काइल हलाइड्स विद ग्रिग्नार्ड और गिलमैन्स रिएजेंट इज दिस, मतलब ठीक है.
कपलिंग में करता क्या है, होता क्या है एग्जैक्टली ये जो R माइनस फॉर्म हुआ ना, गिलमैन में भी फॉर्म होता है या फिर इसमें भी फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं आपके ग्रिग्नार्ड में भी। तो दोनों जगह पर जो R माइनस फॉर्म हुआ, ये किसी दूसरे RX मॉलिक्यूल के R प्लस के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है, राइट? या ये R माइनस इस X को डिस्प्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। Am I making sense? So that this R and this R can combine together to form RR, a bigger molecule of R, right? So वो कपलिंग वाला रिएक्शन नीचे है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। However, Gilman's reagent जो है वो कैसे बनता है, that has been explained. Rx is treated with Li. Again, the entire reaction take place in dry ether environment. ठीक है? Rx with Li, it forms RLi. This is then reacted with CuX. ठीक है? CuX के साथ रिएक्ट करते हैं तो R जो है वो Cu के साथ अटैच हो जाता है, दोनों R। At the same time Cu gets reduced from नहीं, Cu तो 1 ही प्लस पे है, 1 + 1 पे है, और अभी पहले भी +1 पे था, अभी भी +1 पे है। ये माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, एक LiX अलग से, R2Cu Li। ये एंटायर चीज जो है अनायन की तरफ बिहेव कर रहा होता है, और अगेन या तो ये किसी एक माइल्ड एसिड H+ के साथ रिएक्ट करके अल्केन बना सकता है, या फिर किसी दूसरे हलाइड के साथ इंटरेक्ट करके या सब्स्टिट्यूशन करके उसके साथ एक बड़ा अल्केन बना सकता है, कपल्ड अल्केन। ठीक है? यहाँ पर R-X जो है, इट इज मैंडेटेड दैट इट मस्ट बी अ 1 डिग्री halide, for the simple reason that R minus, which is generated from either RMGX or Gilman's reagent, are very active bases, and if it is anything different than 1 degree, they will automatically take the reaction towards elimination process rather than substitution. Is it okay? It will automatically हाँ सर। take the process towards elimination rather than substitution. ठीक है? सो ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऊपर वाले प्रोसेस में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर गिलमैन रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड RMgX is Grignard and RX is sorry, this is Gilman's reagent. अच्छा देखो, ये दोनों रिएजेंट जो है काफी स्ट्रॉन्ग, आई मीन काफी बड़ा ब्रेक थ्रू एक्चुअली क्रिएट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल। इन जनरल हम लोग जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब में R कार्बन जो होता है उसके साथ जो भी हेटेरो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, कार्बन ऑलवेज बिहेव्स एज पॉजिटिव एंटिटी। सब में कार्बन कटायनिक ही होता है, ठीक है? किसी में अनायनिक नहीं होता है। इट इज ओनली इन दीज कंपाउंड्स, स्पेशली डिजाइन्ड कंपाउंड्स, जिसके अंदर कार्बन इज anionic in nature. Are we getting this point? Obviously, this has some very good application and implication. The reason is this gives us a more versatility in our approach towards organic chemistry. वहां पर हम मतलब पहले before we have actually developed RMGX or Gilman's, Grignard or Gilman's reagent, we had restrictions. क्या restrictions था? R को R के ऊपर ऐड कैसे करें? ठीक है, दोनों जगह तो वो कटैनिक स्पेस में ही है या कटैनिक कैरेक्टर के साथ में है, तो कैन R be added to R? No.
बट यहाँ पर अनायनिक स्पेस में आने की वजह से, अनायनिक कैरेक्टर बियर करने की वजह से, it can now be thought or we can plan anything as per our choice. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके। हाइड्रोलिसिस के केस में we can use any mild acid, any of the mild acids, maybe H2O, ammonia, ROH or any other acid we wish to. ठीक है? आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करोगे तब तो डेफिनेटली रिएक्शन होएगा, बट माइल्डेस्ट ऑफ द एसिड से भी हमको काफी इफिशिएंट रिएक्शंस मिल जाते हैं। ज़ेरेविटनॉफ मेथड, इसमें कुछ नहीं, RMGX के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। दिस इज थायो थायोन एंड हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या बोल सकते हैं? कॉमन नाम तो इसका है नहीं, तीनों रहता तो फिर it would have been, it is going to be 1,2-hydroxy, sorry, 3 थायो। 3-thio 1,2-diol, prop diol। ठीक है, that is going to be its name। so यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड के साथ, बेसिकली अल्कोहल के साथ इसको हम लोग करते हैं कंबाइन एंड इट फॉर्म्स मीथेन। दिस इज आवर ज़ेरेविटनॉफ मेथड। इसका कुछ खास नहीं है, ये जस्ट दिया हुआ है फॉर इंफॉर्मेशन, नथिंग, आई मीन इट्स नॉट हैड, इट इज नॉट टू बी बाय, आई मीन यू डोंट हैव टू बाय हार्ड दिस। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया ऑलरेडी आप लोगों को। यू हैव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ये गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट वाला जो प्रोडक्शन मेथड है उसको हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, गिलमैन्स रिएजेंट के थ्रू आर डैश के फॉर्मेशन, कपलिंग जो रिएक्शन है, दैट इज आल्सो नोन एज कोरे हाउस सिंथेसिस। सो कोरे हाउस सिंथेसिस ये वाला प्रोसेस है, ये एंटायर चीज। अरे दिस एंटायर थिंग, एंड इसके बाद आखिरी वाला स्टेप भी रहता है, इसके बाद एक स्टेप भी है। अच्छा हाँ, ये है ना, एक्चुअली दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस। ये वाला जो स्टेप है ना, गिलमैन्स रिएजेंट को यूज करके कपलिंग अगर हम करते हैं, दैट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम कपलिंग करते हैं, दैट इज ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। इज इट ओके? R dash must not be 2 degree or 3 degree, it has to be mandatorily 1 degree। 1 डिग्री नहीं रहेगा तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा और डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब हमें चाहिए कुछ और मिलेगा कुछ और। सो वी कैन गेस द आउटकम्स। दिस इज 1 डिग्री हलाइड, यहाँ से डिटैच होएगा निगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू गेट सब्स्टिट्यूटेड ऑन, और Cl is going to get, Cl minus is going to get substituted from this isopropyl carbanion, right? Phenyl carbanion is going to substitute the chloride ion। यहाँ पर ये एक रिएक्शन देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए एंड ओहो, एक सेकेंड रुको तो, गड़बड़ हो गया।
चलेगा, कोई नहीं, इस रिएक्शन को समझ लो देख के। See, it's a bromo and chloro thing attached on two different corners of the cyclobutane, ठीक है। Then we have Mg and dry ether. So Grignard की एक्टिविटी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन Cl साइड से होगा या Br साइड से होगा? ऑब्वियसली Br इज मोर रिएक्टिव, Br मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए Br साइड से होगा, ठीक है। सो RMgBr जो है दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड, उसको D2O से D प्लस में हाइड्रोलाइज किया हमने, तो इट इज गेटिंग फॉर्म्ड, दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड, और फिर 2Na से हमने ड्राई ईथर में ट्रीट किया इसको, तो कपलिंग रिएक्शन हो गया, एंड कपलिंग रिएक्शन होकर के ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म किया, ठीक है। सो अभी अब आपके दिमाग में धीरे धीरे ये चीजें आनी चाहिए कि ये जो फॉर्मेशन मेथड्स है ये तो हमको ध्यान में रखना है, और फिर इनका एप्लीकेशन हमको करना है या देखना है, जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू हमको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये सारी चीजें अंदर अंदर की चीजें दे रखी हैं। मान लो आपको डायरेक्टली ये चीज दिया होता, ये प्रोडक्ट, ठीक है, एंड मे बी ये चीज दिया होता, एक चीज, और ये नहीं दिया होता, ये दिया होता, और ये दिया होता, ठीक है। क्या क्या दिया होता? एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन, चार इंफॉर्मेशन, और ये चीजें गेस करने के लिए बोली जाती है आपको। वुड यू हैव एफिशिएंटली गेस्ड इट? सेम लॉजिक के साथ, सेम तरीके से। आई थिंक यस, कर पाते हैं। यहां से देख के आपको पता चल जाता है कि बी आर यहां पर होना चाहिए, राइट? या फिर एक काम और कर सकते थे। हाँ देखो, मुश्किल कब होता, सपोज मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ऑर्डर को, ये देता, ये देता, और ये देता, ठीक है। अभी आपके लिए मुश्किल होता ये वाला चीज गेस कर पाना, इट्स नॉट सो इजी। हाइलाइट तो ऑब्वियसली आप गेस कर पाते कि यहाँ पर भी कोई हाइलाइट होगा, और हाँ तीसरा तीन इंफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, एक इंफॉर्मेशन और देना पड़ेगा, मे बी मैं ये दे देता, Mg ईथर। अभी आपको गेस तीन चीजें करनी थी, एक चीज, दो चीज और तीन चीजें, चार चीजें दी रहेंगी, तीन चीजें गेस कर सकते हो। बट ये गेस करना, इसको गेस करने के लिए आपके पास पिन पॉइंटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये चाहिए कि यू नीड टू हैव अ मोर एक्टिव हैलाइड देन क्लोरीन, ठीक है। दोनों अगर क्लोरीन होते तो दोनों साथ साथ Hg के साथ रिएक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि दूसरी जगह पर या तो मतलब क्लोरीन से ज्यादा एक्टिव हैलोजन बेसिकली पड़ा हुआ है, ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन पड़ा हुआ है। सो इट कुड बी आइदर ब्रोमीन और कुड बी आयोडीन। बात समझ में आ रही है? अंडर नो सर्कमस्टांस this and this could be anything like this, Cl and Cl, और दूसरी जगह पे Cl and MgCl। ये नहीं हो सकते हैं, these cannot be a solution, right? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। वेरी गुड, फाइन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाइलाइट्स के बाद नेक्स्ट रिएक्शंस जो होते हैं दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, एंड कार्बोनिल कंपाउंड से बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं।
अल्कोहल से डायरेक्टली हम लोग नहीं बना सकते हैं, अल्कोहल से हम लोग डायरेक्टली ये अल्कीन नहीं बना सकते हैं। अल्कोहल से अगर हमको बनाना है अल्केन, तो इट हैज टू कम वाया हलाइड्स ओनली। द ओनली वे टू कम इज वाया हलाइड्स। अल्कोहल से पहले हम हलाइड बनाएंगे और हलाइड से हम लेकर के आ सकते हैं, या फिर अल्कोहल से हम डीप्रोटोनेटेड सिस्टम कार्बोकैटायन फॉर्म कर लें, ठीक है, और फिर उसकी अ, उसको मे बी उसकी कपलिंग वगैरह करा सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। बट डायरेक्टली अल्कोहल से हम लोग नहीं बना सकते हैं। डायरेक्टली अल्कोहल will not allow, it will actually form ether under under most of the circumstances it is going to form ether rather than alkenes। अल्कीन अगर उससे बनाना है हमको, तो पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसको हमको डिटैच करना होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इज मैंडेटरी। अब कार्बोकैटायन से या तो हलाइड हम ऐड करके बना लें उसको, या फिर कार्बोकैटायन से ही रिडक्शन करा लें और फिर रिडक्शन के बाद कपलिंग करा लें, या फिर रिडक्शन के बाद हम लोग उसको ट्रीट कर दें किसी भी माइल्ड एसिड के साथ। तो इन आइदर ऑफ दीज केसेस इट कैन फॉर्म अल्केन, ठीक है, बट डायरेक्ट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। दैट्स माय ओनली पॉइंट। नेक्स्ट ग्रुप इन लाइन है बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल के साथ हम फॉर्म कर सकते हैं। कार्बोनिल के साथ हमारे पास 3 रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन जो है वो है क्लेमेंसन। ये एसिडिक मीडियम में टेक प्लेस करता है। इट टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। सो एनी ग्रुप विच इज रिस्पॉन्डिंग और विच कैन रिस्पॉन्ड टू एसिडिक मीडियम, like alcohols can respond to दिस एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अगर ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर में और उसको हमको रिड्यूस करना है, तो क्लेमेंसन मेथड जो होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड और कैन नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के किसी दूसरे सेगमेंट में किसी ऑकवर्ड चीज को कर रहा होगा, ऑकवर्ड चीज कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ये एक कंपाउंड लेते हैं हम, CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। इसको अगर मुझे रिड्यूस करना है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन को अगर मैं यूज करता हूं, ZnHgNHCl, चलो ये वाला तो रिड्यूस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हाइड्रोक्सिल जो है ना, ये भी गायब हो जाएगा और यहाँ पर बेसिकली डबल बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो गायब हो जाएगा, वो प्रिजर्व नहीं रहेगा क्लेमेंसन के साथ में। सो अगर कोई भी एसिडिक मीडियम को रिस्पॉन्ड करने वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो वी कैन नॉट यूज क्लेमेंसन रिडक्शन। हावेवर ऐसा कोई ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्लेमेंसन रिडक्शन इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है। Clemenson reduction is a cost-effective method to transform carbonyl into alkanes, but it fails when we have a functional group or any substituent group which responds positively to acidic medium। ऐसा कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो this reaction will have some byproduct or side products, not some side products, the entire product will be side product or we may not get the desired product, ठीक है। दूसरा रिएक्शन होता है हमारा वुल्फ किस्नर। ये बेसिक मीडियम में होता है। सो अगर हमारे पास कोई ऐसी एंटिटी है जो एसिडिक मीडियम को रिस्पॉन्ड करती है, तो द बेस्ट मेथड टू डू इज और बेस्ट मेथड टू डिप्लॉय इज वुल्फ किस्नर मेथड, ठीक है। और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है थायोएसिटल मेथड। थायोएसिटल में क्या है, थायो ईथर।
ठीक है, इस तरीके का थायोल मेथड यार, मोजिंगो, CH2 SH एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है, और C डबल बॉन्ड O जो है, आप लोग को नाइट्रोजन के साथ का इसका रिएक्शन मैंने कल के दिन में बताया था, कल या परसों, जिस दिन भी लास्ट लेक्चर जो था, याद है? नाइट्रोजन वाज रिप्लेसिंग इट एंड गेटिंग डबल बॉन्डेड टू इट। याद है हम लोगों को? सिमिलर तरीके से ये जो हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे ना, दे कैन परफॉर्म द सेम ड्यूटी एज hydrogen attached to nitrogen we are doing. These can one by one get attracted towards oxygen, will attach with it and will protonate it to make it get departed as H2O, and this carbon will form something like this. ठीक है, a product something like this. This upon reduction with Raney nickel, it forms alkane. Okay. सो एक तो थायोएसिटल मोजिंगो मेथड है, मोजिंगो रिडक्शन। इसके पहले दो हैं वुल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन। अब इनका निटी-ग्रिटीज जो है वो कुछ इस तरीके का है। फाइनल प्रोडक्ट तो ठीक है, जहां पर डबल बॉन्ड ओ है वहां पर H हो जाता है। निटी-ग्रिटी जो है वो कुछ इस तरह की होती है, Zn reacts with HCl to form ZnCl2 H plus and 2 electrons। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में कहीं कहीं पर जाएगा। पहले ये H प्लस जो एक निकलता है वो H प्लस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके OH बनाता है, एंड दिस कार्बन बिकम्स कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। हेटेरोएटम के लोन पेयर से स्टेबलाइज्ड रहता है। एनीवे, इलेक्ट्रॉन्स दो होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है ये, और ये अनायनिक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अनायनिक सिस्टम बनने के बाद इट गेट्स अटैच्ड टू सॉरी दिस अनदर H प्लस जो यहाँ पर प्रेजेंट था, दैट गेट्स अटैच्ड टू इट। ओके, सो इट फॉर्म्स दिस। फर्दर H प्लस ये सिस्टम से लेता है एक H प्लस थोड़े टाइम के लिए, जो ये बाद में जनरेट या लूज करेगा। मतलब H2O जो ले करके गया, H2O जो निकला उसमें से फिर H प्लस वो जनरेट हो जाता है और रीजनरेट होता है, एंड दैट इज यूटिलाइज्ड हियर इटसेल्फ। ठीक है, एनीवे, सो H प्लस लेता है, दिस इज प्रोटोनेटेड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, इट फॉर्म्स H2O प्लस and gets departed as H2O, forming again a carbocation। दो इलेक्ट्रॉन दूसरे Zn से जो मिलता है हमको वो एक्सेप्ट करता है ये, एंड H प्लस देन अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ एंड फॉर्म्स दिस। अच्छा, ये कुछ स्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म नहीं है, बस हमने ऐसा ये किया है कि लगभग इस तरीके से रिएक्शन होता है ये वाला। ठीक है, एसिडिक मीडियम में होता है इसलिए आयनिक मैकेनिज्म को ही मोस्टली फॉलो करता है, एंड मोर और लेस इसी तरह का ये मैकेनिज्म हो सकता है। इट इज प्रेडिक्टेड मैकेनिज्म, नॉट वेरी वेल स्टैब्लिश्ड। ठीक है, बट मोर और लेस ये कुछ इसी तरह का होता है। देयर इज नो काउंटर एग्जाम्पल टू इट जहां पर इसको हम डिसअप्रूव कर पाए। सो द मैकेनिज्म हैपेंस टू बी लाइक दिस। एग्जैक्टली क्या होता है, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, रफली इसी तरह से होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखनी है वो ये चीज याद रखनी है, ना कि मैकेनिज्म क्या है वो हमको उस मैकेनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा डाइविंग यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले जितने भी प्रोसेसेस होंगे ना, उनके मैकेनिज्म बताए तो जाएंगे आपको, बट उसके ऊपर बहुत ज्यादा डाइविंग नहीं करना होता है आपको। ठीक है,
The second one is Wolff-Kissner. Wolff-Kissner में what we are doing is we are reacting this aldehyde group or ketone group, carbonyl group with hydrazine and ये OH minus basic medium, hydrazine in basic medium with delta हम treat कर रहे हैं, and the process goes like this. This center is slightly positive. I mean कल जो रिएक्शन बता रहा था 2 स्टेप तक एग्जैक्टली वही रिएक्शन है. N प्लस का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है. फर्स्ट स्टेप बॉन्डेड, O माइनस बना, H प्लस का ट्रांसफर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के ऊपर होना, दैट इज IMPT, OH बन गया, NH, NH2. सेकेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में. दिस विल हेल्प इन रिमूविंग द OH माइनस फ्रॉम द सिस्टम. यहां से डीप्रोटोनेशन में हेल्प करेगा और ये चीज बन जाता है C डबल बॉन्ड NH एंड दिस. अब ये N प्लस जो होता है, दिस पुल्स आउट दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट. यू कैन से लाइक इस तरह से ट्रांसफर्स होते हैं. R डैश C डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड इज ओपनिंग टुवर्ड्स कार्बन. दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ठीक है. दिस हाइड्रोजन इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड बाय as H plus by OH minus which was generated here, such that a double bond is getting formed over here and a negative charge is appearing over here. ये negative charge जो है ये water से H plus लेता है and it forms this thing, ठीक है. यानी बेसिकली ये वाला जो H प्लस निकला सिस्टम में से, हमारे मॉलिक्यूल में से, दैट इज insert getting transferred to here. Is it okay? This hydrogen ये OH माइनस से एक्सट्रैक्ट हुआ, H2O से फिर वापस इस कार्बन पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है. तो नेट यही हुआ, यहां से एक्सट्रैक्ट होकर के ये इस कार्बन पे पहुंच गया, राइट ना. फिर OH माइनस जो डेवलप हुआ या OH माइनस जो सिस्टम के अंदर में है, उससे ये हाइड्रोजन पुल होता है. दिस बॉन्ड गेट्स ट्रांसफर्ड ओवर हियर और ये इस पर आ जाता है. एंड ये फिर H2O जो मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट किया H प्लस H2O बना, उस H2O से फिर ये H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेता है टू फॉर्म दिस अल्कीन एंड N2. अल्कीन एंड N2. इज इट ओके? सर ठीक है. सो वी विल स्टॉप एट दिस प्लेस, वुल्फ-किस्नर. नेक्स्ट चीजें कल करेंगे. देर आर 2 मोर मेथड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू, एंड कार्बोक्सिलिक के बाद HI का रिडक्शन जो है एक वो पढ़ना है. अब HI ऐसी चीज है जो मतलब आयोडीन HI विथ रेड फास्फोरस, वो ऐसी चीज है जो हर ग्रुप को रिड्यूस कर सकती है अल्केन पे. विल सी इट्स रिएक्शन. और ये 2-3 रिएक्शन अच्छे वाले हैं. ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल यूज वाला मेथड है, कॉलवेज लैबोरेटरी का है. बट ये सोडा लाइम ट्रीटमेंट जो होता है ये एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल यूज का मेथड है. एंड देन HI, ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है दैट विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है. एंड देन वी विल बी लुकिंग एट द रिएक्शंस. सर इस बार की टेस्ट का क्या करना है सर? अरे इस बार के टेस्ट में अल्केन तक आएगा जितने रिएक्शंस हो सकते हैं, और खाली अल्केन ही नहीं आएगा, कुछ कुछ और रिएक्शंस जो बताते जा रहा हूँ वो आएंगे ही, उनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछेंगे.
और हाँ, कल और परसों ना सर लेंगे, सीकेपी सर लेक्चर लेंगे मॉर्निंग में। फ्राइडे और सैटरडे ठीक है। मॉर्निंग सीकेपी सर विल बी टेकिंग लेक्चर। उन्होंने बोला कल, अभी मैं इंटीमेट करना आप लोगों को भूल गया था, अभी मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे। फ्राइडे और सैटरडे मॉर्निंग ही विल बी टेकिंग योर लेक्चर्स। अभी कौन सा चैप्टर ले रहे हैं सर? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। ओके, एक ही 2 लेक्चर बचा है ना अब उसका? हाँ सर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह हो गया है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पूरा हो चुका है। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ। हाँ वो हो चुका है। ओके, और एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर बेसिकली बाकी है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर 12th वाले पोर्शन में, राइट? हाँ बाकी चीजें लगभग हो चुकी हैं, एटम न्यूक्लियाई वगैरह की चीजें पढ़ा चुके होंगे वो, मतलब उसमें बेसिकली मैंने बताया था, मैंने जो बताया था उसके अलावा चीजें बताने के लिए, बाकी सारे डिटेल्स तो मैंने बता ही दिए थे आप लोगों को। मैथमेटिकल रीजन बचा है। मैथमेटिकल रीजन, ये तो मैथ्स में है, रीजनिंग। वो तो मैथ्स में ना। हाँ मैथ्स में बचा है, वो टेस्ट में आने वाला है ना। अच्छा, अरे ठीक है, समझा मुझे, नहीं वो अभी नहीं आएगा, वो बाद में पूछ लेंगे, वो इतनी बहुत धुरंधर सी चीज नहीं है, जब पढ़ाएंगे सर पूछ लेंगे। अभी ये वाले चैप्टर्स जो है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर कोनिक सेक्शन। तो कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी के बाद आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होएगा और फिर कोनिक सेक्शन होएगा, ठीक है? और उसके बाद आखिरी में वो वाला चैप्टर करा देंगे, रीजनिंग, ठीक है? मैं इस बार के टेस्ट में है मैथमेटिकल रीजनिंग। अरे तो उसको हटा देता हूँ, दूसरा डाल देता हूँ, नहीं वो रहेगा, पीएनसी है ना, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, ये 2 ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी को रहने देते हैं, पीएनसी खाली ले लेते हैं, पीएनसी इज मच मोर देन एनफ टू जज योर कैपेबिलिटीज, ठीक है? हाँ सर। ओके, एनी अदर डाउट? शुभम, अभी तुम्हारा वहां पे क्या चल रहा है? मनीष क्या ले रहा है 12th वाले में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स ना? हम्म। और पिछले वीक में एक लेक्चर हुआ था, कल सुबह फिर लेगा लेक्चर, और एक ही लेक्चर हुआ है ना ईएम वेव का? हाँ सर। ओके, थिंक कल खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, चलेगा। ओके, और तनुषा आपके बैच में क्या ले रहा है, क्या क्या चल रहा है? 9th के सॉरी 11th के पोर्शन है। हाँ, 11th के पोर्शन वाले में क्या चल रहा सेंटर है? ऑफ मास। ठीक है, और 12th वाले में? वही ईएम वेव्स का ही तो ज्वाइन अच्छा करते हाँ, हैं वो सर। तो दोनों में ही, दोनों लोगों को करना था ईएम वेव्स, और रिपीटर्स वाले में रे ऑप्टिक्स चल रहा है, राइट? वो सर ने सिर्फ वो डाउट लेक्चर्स ही लिया था, बाकी कुछ सर ने चालू नहीं करवाया लेंसेज से। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उससे पूछ लेता हूँ क्या कर रहा है उसमें। और एक सेकेंड, अब बाकी जो 12th वाला बैच था, नॉर्मल वाला, इसका मेडिकल वाला, उसमें उसने कहाँ तक करवाया था? मतलब उसमें वेब ऑप्टिक्स आप लोग का खत्म हुआ था? रिपीटर्स नहीं, रिपीटर्स नहीं, 12th वाला जो बैच था मेडिकल का। सर, उसमें हम जेई वाला ही ज्वाइन करते हैं। अच्छा, 12th वाले में जेई वाला ही ज्वाइन करते हैं? नहीं, बीच में हाँ उसने उसमें बोला था ईएम कि, वेव्स हुआ। हाँ नहीं, बीच में वो अलग भी किया था ना, बोला था अलग करने के लिए, वो मैंने क्या? रिपीटर्स वाला था सर। अच्छा, रिपीटर्स वाला था, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। सो 11th वाले में सेंटर ऑफ मास हो रहा है, ओके। ये आपका क्या हो रहा है शुभम 11th वाले में अभी? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड पिछले वीक और इस वीक भी पूरा फ्लूइड ही चला? अच्छा, हाँ इस सर। वीक भी एक ही लेक्चर था, एक या 2 ही लेक्चर तो था, ओके, ठीक है।
फाइन फाइन, डन। फ्लूइड के बाद फिर मैकेनिकल, और उसके पहले ये रोटेशन ले लिया था उसने ना 11th में? नहीं सर, रोटेशन नहीं लिया है? नहीं ग्रेविटेशन? नहीं, वो सर ने 12th में पढ़ाया था। अच्छा 12th वाले बैच में वो शुरू में पढ़ाया था, ओके ओके। हाँ ठीक है, वो 12th में ही पढ़ाते हैं वो लोग HSC के हिसाब से, रोटेशन और ग्रेविटेशन को 12th में। सो यहाँ पर बेसिकली दो, एक इम्पॉर्टेंट, एक फ्लूइड हो गया आपका, और एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड देन उसके बाद साउंड, SHM साउंड। ठीक है, चलेगा। मैं एक बार मनीष से आज कल में बात करता हूँ, आगे का क्या कैसे कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो। तो इधर इस 2 वीक में एक्चुअली उसने काफी कम लेक्चर 12th वाले लगाए हैं। ठीक है, चलेगा। Let me conclude the lecture for today and this, and कल फिर आगे की चीजें देखेंगे हम लोग। ओके, बाय फॉर नाउ। अरे नहीं, बाय फॉर नाउ नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं एंड ही करता हूँ।